names of HMP shunt? Any other names for HMP shunt? Yeah, number one is there. Pentose, phosphate pathway. Any other name? Any other name? Phospho, gluconate pathway, right? And there is one another name. Anybody who knows? Third one is Dickens-Horiker pathway, right? So these are the three names. First is pentose phosphate pathway, phosphogluconate pathway, and final Dickens-Horiker pathway, right? So what is HMP shunt? Just tell me, define. This is alternative pathway for oxidation of ग्लूकोज, राइट? पहले दो पाथवे कौन से थे किए हमने? फर्स्ट वन वाज ग्लाइकोलाइसिस, राइट? सेकंड वन वाज क्रेब्स, राइट? कनेक्टेड होके सारे होते हैं और तीनों नाम याद हो गए सबको? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे एंड डिकन्स-हॉरिकर पाथवे, राइट? एंड एंजाइम्स कहां है इसके? साइटोसोलिक फ्रैक्शन ऑफ द सेल, राइट? Okay, it is alternative pathway for oxidation of glucose. It is HMP shunt pathway, right? Three names are there, right? And location of the cycle is cytosol. Cytosolic enzymes are there, right? ये pathway है सारा. And the starting substrate here is for this is glucose 6 phosphate. So this pathway starts from glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate कहां से आ सकता है बोलो? Anybody who knows? ग्लाइकोलाइसिस से आ सकता है? ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना? तो वहां से भी आ सकता है, ठीक है? एक चीज रह गई, इंपॉर्टेंस. नंबर वन, it is the source of NADPH, and second, it is the major source of pentosis, right? You will get 5 marks question in formative assessment or any exam about the importance of HMP shunt. So it is required for the synthesis of NADPH and pentosis, right? Clear? And this pathway has two parts. One is oxidative and the second is non-oxidative pathway, right? So I repeat, HMP shunt is alternative pathway for oxidation of glucose. Clear? That is why it is shunt pathway, right? Other names were pentose phosphate pathway, phosphogluconate pathway and Dickens-Horiker pathway. Clear? Enzymes कहाँ थे? Cytosolic fraction of the cell, right? And it was, this is basically divided in two parts. First is oxidative and the second is non-oxidative, right? Now coming on to the importance. So first was that it is required for the synthesis of NADPH and the second is it is required for the synthesis of pentosis, right? Clear इतना? So अब आ गया pathway proper, right? तो मिनोमिक बता दो. पे पापा रहेंगे. So Papa is on leave.
So we'll go on vacations. ठीक है? Then vacations पे हम घूमने जाएंगे, right? कहाँ जाएंगे? You will use 2 cars. One is Xylo and other is Ribo, right? And Xylo is a sedan car and Ribo is a very smooth, so it works like glycerine, right? In this car sedan we will go to Egypt, and in this Ribo we will go to France, right? So now we'll start the pathway, right? So beginner was, so first of all the first 4 steps are oxidative, right? So we'll start from glucose 6-phosphate, right? Clear है ना? It is the beginning, starts from glucose 6-phosphate, right? So glucose 6-phosphate is there, then this P, 6-phosphogluconolactone, right? Then again P for phosphogluconate 6. Then रहेंगे for ribulose 5-phosphate, right? So first 4 steps are there: glucose 6-phosphate, 6-phosphogluconolactone, then 6-phosphogluconate, and then finally ribulose 5-phosphate, right? So this first step is carried by glucose 6-phosphate dehydrogenase, right? And it requires conversion of NADH to NADPH, right? So NADPH is synthesized here in this pathway, right? In second step, tell me, it is a hydroxylation step, we will add water, right? In third step, carbon dioxide is removed, and again NADH is converted to NADPH, and we'll get ribulose 5-phosphate. घर पे पापा रहेंगे. Clear है mnemonic? So this first 4 steps are oxidative. Clear to all of you? If you are mentally, glucose 6-phosphate enzyme was glucose 6-phosphate dehydrogenase. It is converted to 6-phosphogluconolactone, right? Then hydroxylation action was there, 6-phosphogluconate. Then again NADPH is formed and we'll get ribulose 5-phosphate, right? So we have reached here for vacations, right? Now further 2 steps are there. So we are a joint family and Papa told that we should hire 2 cars. ठीक है, we should hire 2 taxis. One was Xylo, Mahindra Xylo, नाम सुना है ना? Yes, Xylo. So it was Xylo and other was Ribo. तो Xylo से क्या आया? Xylulose 5-phosphate, right? Ribo से क्या आया? Ribose 5-phosphate. Clear to all of you? Any doubts? Any doubts? Okay. Now then Xylo was a good sedan. For sedan S is there, we'll get pseudoheptulose 7-phosphate, right? And Ribo gives a very smooth ride. Glycerin is very smooth, na? So here comes glyceraldehyde 3-phosphate for that. It's clear to you, all of you? Remember one thing here, the total will be always 10. How? Xylose is a 5-carbon and ribose is a 5-carbon, right? Total will be 10.
right? Here again C2 have 2 losses, 7 carbon, and glycerol is 3 carbon. Again total is 10. Next, again reaction. On Sudan we went to where? Egypt. So E for erythrose 4-phosphate. And on glycerol we took air route and we went to France. So France for fructose 6-phosphate. राइट अब तो याद रहेगा, घर पे पापा रहेंगे, ठीक है? तो वेकेशन का प्रोग्राम बन गया, जॉइंट फैमिली थी, वी borrowed 2 cars, right? One was xylo and other was ribo. Xylose for xylo, xylose 5-phosphate, ribo for ribo 5-phosphate, right? Then xylo was Sudan, C2 have 2 7-phosphate. Ribo was very smooth like glycerine, so glyceraldehyde 3-phosphate, right? Then on Sudan we went to Egypt for erythrose 4-phosphate, and on glycerol we went by air, indigo flight to France, fructose 6-phosphate. The pathway is complete almost. Ribulose 5-phosphate था हमारे पास, राइट? तो इससे हमने क्या क्या बनाया पहले? Xylulose 5-phosphate and other was ribose 5-phosphate. So जहां एंजाइम कैसे आएगा देखो, ribulose is there, it is a keto form, right? And this is aldo form, so you use keto isomerase. Keto isomerase, right? And here ribulose is converted into xylulose 5-phosphate. It is a epimeric form, so the enzyme is epimerase. Clear? Allulose 5-phosphate is there and ribose 5-phosphate. And then we have reaction is carried by thymine pyrophosphate and magnesium ions, and transketolase is the enzyme, right? Transketolase, right? So xylulose 5-phosphate is converted into C2H2lose 7-phosphate, right? And ribose 5-phosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. यहां तक क्लियर हो गया सबको? बोलो. Then again, so remember one thing, 10 will be total carbons. Xylulose 5 carbon, ribose 5 carbon, 5 plus 5 is equal to 10, right? C2H2lose 7 carbon, glyceraldehyde 3 carbon, so total 10, right? Now again this was transketolase reaction, now we have transaldolase reaction. So what we will get? सुडान पे कहां गए थे? इजिप्ट. तो आ गया erythrose 4-phosphate एंड फ्रांस गए थे कहां पे? fructose 6-phosphate. क्लियर? तो टोटल कितना रहा अगेन? 4 and 6 10 carbon total, 10 carbon total, again 10. क्लियर? घर पे पापा रहेंगे तो फर्स्ट वाज ग्लूकोज 6-phosphate द प्रिकर्सर, राइट? ग्लूकोज 6-phosphate undergoes NADH reaction to form NADPH, right? तो what was formed by enzyme was glucose 6-phosphate dehydrogenase. क्या बना? 6-phosphogluconolactone. P बन गया पहला. सेकेंड P में क्या था? बोलो बोलो, रिवाइज कराओ. हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन था, तो क्या बना? 6-phosphogluconate बन गया, राइट? सेकेंड P आ गया. फोर्थ में क्या आया? बन गया हमारा राइबुलोज 5-phosphate. यहां तक फर्स्ट 4 स्टेप्स कौन से थे? ऑक्सीडेटिव पाथवे, राइट?
फर्स्ट 4 स्टेप्स आर कवर्ड डाउन. नाउ नॉन ऑक्सीडेटिव आ गया सेकंड पार्ट, वो शुरू हुआ हमारा यहां से. तो पहले टोटल 10 बनेगा, तो कॉम्बिनेशन वाज देयर, ठीक है. ज़ैलुलोज 5 phosphate एंड राइबोस 5 phosphate, राइट. देन C2H12 7 phosphate एंड glyceraldehyde 3 phosphate, एंड ये ट्रांसकीटोलेस रिएक्शन है. देन ट्रांसएल्डोलेस विल बी देयर, राइट. एंड फाइनली एरिथ्रोस 4 phosphate एंड फ्रक्टोज 6 phosphate. उसके बाद क्या बना, आगे के स्टेप्स हैं नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे. उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वी सिंथेसाइज 7 नंबर कार्बन एटम, वी सिंथेसाइज 6 नंबर कार्बन एटम, वी सिंथेसाइज 4 नंबर कार्बन एटम, राइट. 4 7 6 के कार्बन हम बनाते हैं, 3 के भी, ठीक है. तो ज़ैलुलोज से बना, ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, टीपीपी और मैग्नीशियम से हुआ. ट्रांसकीटोलेस तो बन गया C2H12 7 phosphate एंड glyceraldehyde 3 phosphate. देन एल्डोलेस हुआ तो बना एरिथ्रोस 4 phosphate एंड फ्रक्टोज 6 phosphate. और ये फ्रक्टोज 6 phosphate कहां गई, कन्वर्ट हो सकती है ग्लूकोज 6 phosphate में, राइट. तो ग्लूकोज 6 phosphate साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज ग्लूकोज 6 phosphate वाज प्रिकर्सर, राइट, जहां से एचएमपी चेन शुरू हुआ था. तो जो फ्रक्टोज 6 phosphate गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate वाया फ्रक्टोज 6 ये कन्वर्ट हो गया. और जो हमारा 4 कार्बन, इसका क्या बनेगा, एरिथ्रोस 4 phosphate का. ये देखो एक ज़ैलुलोज 5 phosphate थी, कितने कार्बन वाली थी, 5, और ये 4, 5 + 4 कितना बना, 9 ना. तो 9 में से 6 कार्बन कहां जाएगा, फ्रक्टोज 6 phosphate में, और 3 कार्बन बस, टोटल रिमेन्स द सेम. क्लियर हो गया सबको साइकिल. एचएमपी चेंज कहां हो रहा था, साइटोसोलिक फ्रैक्शन ऑफ द सेल. क्लियर है ना. और इसके 2 पाथवे थे, एक स्टेप्स थे, पहला ऑक्सीडेटिव, सेकंड नॉन ऑक्सीडेटिव, राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ एचएमपी चेंज क्या थी, रिपीट अंटिल यू सक्सीड, राइट. इंपॉर्टेंस ऑफ एचएमपी चेंज क्या थी, सिंथेसिस ऑफ NADPH कहां बना, यहां बना और यहां बना, ठीक है. सेकंड इंपॉर्टेंस क्या थी, पेंटोसिस बनाता है, बन गई पेंटोसिस, कितनी बनाई हमने, ठीक है. पेंटोसिस कहां बन रही है, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में, और NADPH कहां बन रहा है, ऑक्सीडेटिव पाथवे में, ठीक है. हो गया एचएमपी शंट याद. तो क्या था मोनोमिक, घर पे पापा रहेंगे, वेकेशंस में जाएंगे, वील हायर 2 कार्स, वन इज ज़ाइलो एंड अदर इज राइबो. ज़ाइलो इज ए सेडान एंड राइबो इज वेरी स्मूथ लाइक ग्लिसरीन, तो glyceraldehyde 3 phosphate आ गया, ठीक है. एंड ग्लिसरीन पे हम कहां गए, वेरी स्मूथ राइड पे फ्रांस चले गए, ठीक है. और ज़ाइलो पे, सेडान पे इजिप्ट गए. तो सारे मोनोमिक याद हो गए, फर्स्ट नेम वहां से आएगा. क्लियर है, तीनों नाम याद हो गए सबको. पेंटोस फॉस्फोरस पाथवे, पेंटोस बनती है, फॉस्फोग्लूकोनेट भी बना था, दूसरा नाम हो गया, तीसरा भी हो गया डिकन-सॉरिकर पाथवे. क्लियर है सबको. देन क्या था, अल्टरनेटिव पाथवे था फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. एंड इसमें क्या क्या बनता है, इंपॉर्टेंस थी NADPH एंड पेंटोसिस वाज देयर, राइट. लोकेशन सबको याद हो गई, कहां थी, साइटोसोलिक फ्रैक्शन ऑफ द सेल, राइट. और इसके जो टिश्यू कौन कौन से इन्वॉल्व है, लिवर, एडिपोस टिश्यू, अड्रीनल ग्लैंड, एरिथ्रोसाइट्स, गोनेड्स, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, दे आर हाईली रिच इन HMP churn, right. You can get erythrocyte, gonads, then adrenal gland and erythrocytes, right. And these tissues कहां इन्वॉल्व होते हैं, for the synthesis of fatty acid and steroids, right. जो हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में NADPH बना रहे हैं, वो फाइनली यूज होना है लिपिड सिंथेसिस में और स्टीरॉयड सिंथेसिस में, राइट. फैटी एसिड सिंथेसिस एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस, राइट. सो एचएमपी शंट वाज ए shunt pathway. Glucose 6 phosphate, by glucose 6 phosphate dehydrogenase we get 6 phosphogluconolactone, then 6 phosphogluconate by hydroxylation reaction, and finally ribulose 5 phosphate, right. Then ribulose 5 phosphate is converted to ribose 5 phosphate. ये कौन सा रिएक्शन था, keto isomerase reaction, right. I have written here keto isomerase. Ribulose is a keto form and this is aldo form, keto isomerase, right. Here ribulose 5 phosphate and it is epimer, xylulose 5 phosphate epimerase enzyme जो भी बना. देन बन गया हमारा, यहां पे क्या होगा, ट्रांसकीटोलेस रिएक्शन और एल्डोलेस होंगे तो बनेगा C2H12 7 phosphate एंड देन glyceraldehyde 3 phosphate. तो इसमें याद रखना है कि
डाउट ना हो टोटल 10 रहेगा। पहले में दोनों 5-5 बने, राइबोस 5 फॉस्फेट एंड जाइलोस 5 फॉस्फेट, दोनों 5 कार्बन, टोटल 10 बन गए। देन C2H2 7 फॉस्फेट 7 कार्बन, तो उसके साथ कितने वाला आएगा, 3 वाला आएगा ना, टोटल 10 करना है। क्लियर? देन फाइनली इथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहां गई, कन्वर्ट हो सकती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोबारा रिएक्शन चलाएगा आगे, बन गया। और उसके बाद इथ्रोस 4 फॉस्फेट कहां जाएगी, जाइलोस कितने कार्बन वाली थी, 5 कार्बन, और ये 4 कितने बने, 9, तो एक में निकल गई इसमें से 6 कार्बन, क्या निकला, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 3 कार्बन, दिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो बोलो एनी डाउट? ऑक्सीडेटिव फेज हमने कर लिया सारा, और जो पहला रिएक्शन था हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेटेज रेगुलेटरी स्टेप है पहला, राइट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फो, ये हमारा रेगुलेटरी स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फो डिहाइड्रोजनेज इज ए रेगुलेटरी स्टेप, राइट? एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, राइट? और NADPH कॉम्प्यूटरली इनहिबिट्स G6PD, ठीक है? अगर साइकिल को आगे लेके जाना तो NADPH बनेगा आगे, राइट? एंड ये रेशियो डिपेंड करती है कि रिएक्शन आगे फ्लक्स होता है कि नहीं होता, रेशियो ऑफ NADPH टू NAD, राइट? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कर लिया हमने, उसमें क्या क्या किया था, ये बनी थी हमारी राइबोलोज 5 फॉस्फेट, कितने कार्बन थे इसमें, 5, बोलो। तो कीटो आइसोमरेज किया तो बन गई राइबोस, एपिमेरेज किया तो बन गई जाइलोस 5 फॉस्फेट, दोनों के कार्बन 10 ही रहने हैं, 5 + 5, ठीक है? देन थायमिन पायरोफॉस्फेट यूज किया, मैग्नीशियम यूज किया, ट्रांसक्रिप्टोलेज रिएक्शन किया, वी गॉट 1 7 कार्बन C2H2 7 फॉस्फेट एंड दिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्लियर? देन फाइनली 7 + 3 = 10, अगेन ट्रांसएल्डोलेज से इथ्रोस 4 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इथ्रोस 4 फॉस्फेट से क्या बनाया हमने, जाइलोस मिलाई साथ में, 4 and 5 9 बन गए, तो 6 का हमने क्या बना लिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और 3 का क्या बनाया, दिस एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और जो इथ्रोस बची हमारे पास उससे क्या बनाया हमने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है? क्लियर हो गया? तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से बने, वन वाज पेंटोसिस एंड अदर वाज NADPH। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी इसमें से, पेंटोस में राइबोस 5 फॉस्फेट क्या बनाएगी, RNA DNA न्यूक्लियोटाइड्स ATP सारे ये बनेंगे इससे, ठीक है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। NADPH की इंपॉर्टेंस बोलो। पहले सबसे पहले किया था कि NADPH कौन से टिश्यू में था, हमने किए थे एरिथ्रोसाइट्स थे और फैटी टिश्यूज थे और स्टीरॉइड्स वाले थे, ठीक है? तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टीरॉइड्स, राइट? जो NADPH HMP से जनरेट होगा ना, दैट विल बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड स्टीरॉइड्स, राइट? और NADPH इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स वाया ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, राइट? कुछ अमीनो एसिड भी बन सकते हैं इससे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन हुआ जो होता है, इसको मैं दिखाता हूं आपको, पहले इसको कर लें, ठीक है? देयर इज कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिविंग सिस्टम व्हिच कैन केमिकली डैमेज द लिपिड प्रोटीन, ठीक है? जो फ्री रेडिकल इंजरी होती है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ठीक है? और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को NADPH से हम डिटॉक्स करते हैं, कैसे, देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना एक्स्ट्रा, जो फ्री रेडिकल इंजरी हुई लिपिड्स की, फैट्स की सारी, तो उसको ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज से बना देंगे, वाटर में कन्वर्ट। तो ये रिएक्शन कौन करवाता है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस ग्लूटाथायोन, राइट? तो फिर ये वाला, इसमें ये वाला एंजाइम के लिए क्या यूज होता है, NADPH। NADPH कहां से आता है, HMP शंट से। फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप पे हमने NADPH बनाया था ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया था, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, तो इसमें NADPH जनरेट हुआ था। फिर हमने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन किया था, तो क्या बना था, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और उसके बाद हमने फिर डीकार्बोक्सिलेशन किया और NADPH और बनाया, तो क्या बना था, ठीक है? तो उस स्टेप पे भी बना था NADPH। ये NADPH जो बन रहा है ना HMP शंट से,
ये ऑक्सीडाइज को रिड्यूस में कन्वर्ट करता है ग्लूटाथाइन को, राइट, रोल ऑफ ग्लूटाथाइन। तो अगर ये रिएक्शन नहीं होगा ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये वाटर में नहीं कन्वर्ट होगी, तो ऑक्सीडेशन होती रहेगी। तो इसका आगे जाके नुकसान क्या होगा बताते हैं, पहले ये देखो। तो ग्लूटाथाइन रिड्यूस डीटॉक्सिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, पेरोक्सीडेस रिएक्शन करता है। NADPH रिस्पांसिबल फॉर द जनरेशन ऑफ रिड्यूस ग्लूटाथाइन। जो ये रिड्यूस ग्लूटाथाइन बन रहा है वो NADPH से आ रहा है, और ये NADPH कहां से आ रहा है, HMP शंट के ऑक्सीडेटिव पाथवे से। पहले 4 स्टेप्स किए थे उसमें से आ रहा है, राइट। HMP शंट में हमने 2 मेन प्रोडक्ट्स बनाए, वन वाज पेंटोसिस एंड सेकंड वाज NADPH। द NADPH फॉर्म विल कन्वर्ट ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस ग्लूटाथाइन, तो ये इसमें रोल यूज होगा, राइट। और साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है लिवर में, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी NADPH इन्वॉल्व होता है, राइट। फैगोसाइटोसिस में भी यूज होता है NADPH। +1-2 में रिएक्शन किया था कि नहीं किया था, चलो। और फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NADPH का रोल इन आरबीसी। जो NADPH बनता है एरिथ्रोसाइट्स में है स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म, राइट। इट मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन which is essentially required to prevent integrity of RBC membrane, right? Or high concentration of NADPH is found in lens of eye and preserves the transparency of the lens. Lens में भी मेंटेन करता है, right? अब ये एक डिसऑर्डर आ गया, क्लिनिकल केस EC का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी। किया भी, कर लिया केस स्टडीज में। तो ये एंजाइम कहां पे आया था हमारा HMP शर्ट में, ऑक्सीडेटिव पाथवे के नॉन ऑक्सीडेटिव में, ऑक्सीडेटिव में। पहला स्टेप था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाज देयर, इट वाज कन्वर्टेड टू 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टन। तो क्या यूज हुआ था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, टेल मी। ये वाला हमारा पाथवे ब्लॉक हो गया बिकॉज दिस एंजाइम इज नॉट देयर। तो क्या होगा, जो हम NADPH बना रहे हैं वो नहीं बनेगा तो उसका लेवल डिक्रीज करेगा। तो NADPH हम कहां यूज कर रहे थे, यहां यूज कर रहे थे। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता था 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, हियर NADPH वाज सिंथेसाइज्ड। तो एंजाइम कौन सा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब ये नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, तो NADPH भी कम हो गया। अगर NADPH कम हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो फिर सेल में ये H2O2 वगैरह जो फ्री रेडिकल से ज्यादा अकोमुलेट होंगे, ठीक है। अकोमुलेट होगा तो क्या होगा, सेल की एरिथ्रोसाइट्स की हिमोलिसिस हो जाएगी। हिमोलिसिस होगी तो क्या होगा, एनीबॉडी हु कैन ट्राई। हिमोलिसिस होगी तो क्या होगा, मे बी अनीमिया होएगा एक, तो चलो मान लिया, ठीक है। तो पहले अब इसका कुछ रोल है, +1-2 में शायद क्वेश्चन आता था, यदि फ्रीक्वेंस वर रेजिस्टेंट टू मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम के, उसका लिंक हमारा HMP शंट के साथ आएगा। देखो कैसे, G6PC रेजिस्टेंट टू मलेरिया, क्यों, लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, सिंपल आरबीसी बना लिया हमने, जैसे भी बना लिया। तो लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज, राइट। लेकिन अब डेफिशिएंसी किसकी है, डेफिशिएंसी है। तो अगर G6PD की डेफिशिएंसी है तो हमारा NADPH नहीं बन रहा प्रॉपर, राइट। तो NADPH नहीं बनेगा तो H2O2 प्रॉपर नहीं होगा, तो फ्री रेडिकल इंजरी होगी सेल के अंदर रेगुलरली, और ना ही रिड्यूस ग्लूटाथाइन ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो सेल इंजरी होगी और फाइनली सेल हिमोलिसिस होगा, सेल ब्रेक होगा। तो इस वजह से द सेल विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ 120 डेज, पहले ब्रेक करेगा। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम अंदर गया है उसका भी लाइफ स्पैन पूरा नहीं हुआ 120 डेज का, पहले ही मर गया, तो मलेरिया नहीं होगा उसको।
अगर हम 9 मंथ्स मदर की वूम में रहते हैं तो पूरा टाइम निकलता है तभी बेबी डिलीवर होता है ना, तो उसको 120 डेज यूज करने हैं आरबीसी के अंदर प्लास्मोडियम फैल्सीपुरम ने, ताकि वो मल्टीप्लाई हो पाए, है ना, तभी वो ब्रीड करके पूरा आगे बनेगा। लेकिन हमारा 120 डे साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा। वाई? एचएमपी शंट का पहला एंजाइम नहीं है हमारे पास, दैट इज G6PD। G6PD नहीं है तो क्या नहीं है? NADPH। NADPH नहीं है तो ये फ्री रेडिकल इंजरी हो रही है। फ्री रेडिकल इंजरी हो रही है, सेल ब्रेक कर रहा है। सेल ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है? हिमोलिसिस। हिमोलिसिस हो रही है, सेल का साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो उसके अंदर क्या बैठा था अंदर? प्लास्मोडियम फैल्सीपियरम। तो उसका स्पैम भी हमने कंप्लीट नहीं हुआ, तो मिसकैरेज हो गया उसका एक किस्म का। यू कैन रिलेट टू दैट। आ गया ना समझ? उनका तो वो नहीं होता कि वो सीधे डाई, एंड दैट्स व्हाई अफ्रीकन्स उसमें ये डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर दिया गॉड ने उनके लिए, है ना। हिमोलिसिस तो हो रही थी क्योंकि उनमें G6PD डेफिशिएंसी है, लेकिन उधर प्लास्मोडियम फैल्सीपुरम बहुत ज्यादा था, तो भगवान ने उनकी एक सुन ली। प्रोस एंड कॉन दोनों दिए, तो उनको डेफिशिएंसी से क्या हुआ? उनमें NADPH नहीं बना। NADPH नहीं बना तो सेल हिमोलिसिस हो गई। हिमोलिसिस होगी तो अंदर जो फैल्सीपुरम आया था उसका साइकिल कंप्लीट नहीं, वो भी मर गया, उसका मिसकैरेज हो गया, राइट। तो अब उनको मलेरिया नहीं होता। दैट इज एडेड बेनिफिट। क्लियर हो गया? पे आना पीजी में भी आएगा मल्टीपल चॉइस इसका, वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें कौन सी डेफिशिएंसी है? ट्रांसकीटोलेस कहां पे आया था? रिमेंबर द पाथवे। ट्रांसकीटोलेस, ठीक है, टीपीपी और मैग्नीशियम के साथ जो रिएक्शन था उसकी डेफिशिएंसी है, तो ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी इज अल्टरेशन इन ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी, राइट, विद टीपीपी। दिस इज ए बायोकेमिकल एलियन and the symptoms include mental disorders, loss of memory and partial paralysis, right, and it is also manifested in vitamin deficient alcoholics, right। किसी को डाउट है? HMP shunt is complete। You can easily tell me why HMP shunt में अगर G6PD deficiency होगी, है ना, तो it will be resistant to malaria। आ गया समझ सारा? मिनोमिक याद हो गया? घर पे पापा रहेंगे वेकेशंस पे, 2 गाड़ियां हायर करेंगे, एक वाज जाइलोस एंड अदर वाज राइबोस। जाइलोस पे हम कहां गए थे? इट वाज सिडान, और सिडान पे हम गए इजिप्ट। इजिप्ट क्या था? एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट, राइट। और दूसरी कौन सी गाड़ी थी हमारे पास? राइबो। राइबो वाज वेरी स्मूथ लाइक ग्लिसरीन, तो यूज वी फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, राइट। उससे क्या बनाया आगे? हम फ्रांस चले गए, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट दोबारा बना लेंगे, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट साइकिल फिर दोबारा शुरू कर लेंगे, रिसाइकल हो गया। और इथ्रोस 4-फॉस्फेट का क्या किया? जाइलोस 5-फॉस्फेट था, 5 वाला 4 वाला, एक 6 कार्बन बना लिया और एक 3 कार्बन बना लिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड। साइकिल इज कंप्लीट। फ्रैक्शन कौन सी थी? साइटोसोलिक फ्रैक्शन ऑफ द सेल वाज देयर, और 2 पाथवे थे, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव से क्या बनाया था? NADPH, और दूसरे में से पेंटोसिस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डिजीज आएंगी इसमें से, G6PD डेफिशिएंसी, रेजिस्टेंट टू मलेरिया, एंड सेकंड वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम आ गया, ठीक है।